हमारे बीच में आखिर में डॉक्टर तौसीफ शेख साहब हैं। आइए मैं गुलाम हलवे से कहूँगा कि डॉक्टर तौसीफ शेख साहब की इज्जत अफजाई पजीर है। डॉक्टर तौसीफ शेख साहब आपको हमारी इज्जत अफजाई। तो बैक टू क्रिकेट इज गोइंग टू बी Silver Arms of Bhiwandi, the great fast bowler since from 5 seasons in Bhiwandi Taluka cricket, create the history in this season, 4 hat-tricks. Usama facing him Nandan Patil, ring of king, what a battle. Long run up to the wicket now, turn from heavy end. Bostu Nandan check his stroke and turned as ball on the onside, and with the stroke batsman through for one. Nice push. There is the out throw. Chance of run out. Yes, he's gone. Karan Patil is out for Golden Duck, and once more Pioneer delighted in first over. Nabil, this is the good start from Pioneer. Claim the very important wicket of Karan Patil, who is the informed batsman of Science Kharbao. In previous matches, he played some of very good knock. He is out for Golden Duck in place of Karan Patil. तालमेल की कमी, कहीं ना कहीं तालमेल की कमी थी दोनों बल्लेबाजों के बीच, नतीजा विकेट गंवाना पड़ा। New man in captain Harshad Patil. One for the loss of 1 wicket, Science Kharbao. Before this, Pioneer and Science played 4 matches, 3 won by Pioneer and 1 won by Science Kharbao. But very cut-to-cut matches in previous trophies. Usama, right arm over the wicket, facing him Nandan Patil. Boss to Nandan, try to switch it. Appeal for LBW. This is not a sensible stroke from batsman Nandan Patil. Not easy against Usama, this type of stroke. He is the key bowler, he is the wicket taker bowler of Pioneer. 2 without 2 for the loss of 1 wicket. That was a aging loud shot for LBW from Usama. Usama, right arm over the wicket, facing him batsman Harshad Patil. Flight, very bright floodlight. This time tucking on the onside with the short back leaf. They go for one, looking for a second, and finally makes it easily. Good running between the wicket by these two. 2 more to total now. His score was up to 4 for the loss of 1 wicket. You are watching Mapoli A1 trophy. Welcome all of you from 9-star Mapoli A1 group. The Prince of Mapoli, Adnan Bhabe, superstar of Mapoli, Zamir Patel, the dashing Shehzad Don and Shailesh Gaikwad. This time, once more batsman looking for a swing, but they threw for a cheeky single. No signal from umpire Salvi of the bat. हमसे जुड़ने जा रहे हैं अतिक कुंगले, अयाज नियाज पटेल और आलमगीर शेख. This time try to play it through his legs, use the depth of the crease. 1 to total now. His score was up to 6 for the loss of 1 wicket. 6 for the loss of 1 wicket. You are watching Mapoli A1 trophy, the match between Pioneer and Science Kharbao. Good start from once more from Usama, contained batsman, keep and quiet. It has been a tidy bowling. This time his hard and high should be catch.
Oh, it's dropped by Furkan in deep, and Arshad Patil gets a life. Slightly tough chance, but finally put down. जीवन दान मिला है वहां पर हर्षद को। हालांकि कोशिश बढ़िया की थी वहां पर फुरकान ने। एक ओवर की समाप्ति पे हम देखें तो कुल मिलाकर रन बने साइंस स्पोर्ट खारबाऊ के 8 और विकेट गिरा 1। गेंदबाजी में मापुली एंड से बुलाया गया है गेंदबाज जिलानी को। जिलानी इस सीजन में दूसरा हैट्रिक कर चुके थे, जब पहला हैट्रिक इस सीजन का आतिश बामड़े ने किया था, दूसरा हैट्रिक जिलानी ने किया था। गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए जिलानी सामना करेंगे बैट्समैन नंदन पाटिल। नंदन पाटिल भी पिछले सीजन में बहुत अच्छे टच में थे, लेकिन इस सीजन में एक दो बारियां ज़रूर उन्होंने अच्छी खेली है, लेकिन वो जिसके लिए वो जाने जाते थे वो क्रिकेट अभी तक उनके बल्ले से हमने देखा नहीं है। रिंग ऑफ किंग, मैंडेटरी पावर प्ले के तालुका क्रिकेट के सबसे अच्छे बल्लेबाज। चिलानी मापोली एंड से समय में कॉपरेट करना है पायनियर स्पोर्ट्स। चिलानी काफी लंबा सोच विचार चल रहा है जिलानी और कप्तान के बीच में। राइट आर्म ओवर द विकेट आते हुए इस मरतबा ऑफ स्टंप से ज्यादा बाहर की अंपायर हमारी तरफ मुड़े और वाइड घोषित किया। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 पे पहुंचा है साइंस खारबाव का। 9 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। चेतन भुईर और हम्माद अंसारी दोनों 12वें खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में। जिलानी जिलानी राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए इस मरतबा हुक कर दिया है। बहुत ही खूबसूरत शॉट, गेंद वाइडिश फाइन लेग बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रन। कमाल का शॉट, क्रीज में पीछे जाके नंदन पाटिल का। चौके की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 पे पहुंचा है साइंस खारबाव का। ये देखिए किस तरीके से स्ट्रोक को अंजाम दिया था। सफल हो गए थे ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर और हुक कर दिया था गेंद को। देखिए तालुका क्रिकेट में नंदन पाटिल से बढ़कर कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं जो मैंडेटरी पावर प्ले में इस तरह की बल्लेबाजी करे, इसीलिए उन्हें रिंग ऑफ किंग कहा गया है। जिलानी राइट आर्म ओवर द विकेट आते हुए बहुत तेज तर्रार गेंद टिप्पा खाने के बाद निकल गई नंदन के करीब से। बहुत बढ़िया वापसी, करारा जवाब उस चौके का देते हुए। जिलानी गुडलेन पे पड़ी थी और ये देखिए हल्का सा मोमेंट था। चौके के बाद बढ़िया वापसी। इस वक्त जिलानी के स्कोर 13 पर पहुंचा है, 1 विकेट के नुकसान पर साइंस स्पोर्ट्स खारबाव का। जिलानी लंबे रनअप से मुड़ते हुए सामना करेंगे बैट्समैन नंदन पाटिल। तेज गेंद, अपील अधूरे मन से, लेकिन इस गेंद ने
पूरी तरह से नंदन के इरादे और बल्ले दोनों को छटाया था। थोड़ा अचंभित है जिस तरह का पेस जिलानी निकाल रहे हैं इस विकेट से। ये देखिए क्या खूबसूरत गेंद थी, बल्ले के करीब से चली गई विकेट कीपर के पास। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फास्ट बॉलिंग, फास्ट और फ्यूरियस गेंदबाजी कर रहे हैं और लेंथ और लाइन बहुत अच्छी रखी है और लाइन ऑफ अटैक भी बहुत अच्छा है उनका। एक चौका लगने के बाद जबरदस्त 2 गेंदें देखी। जिलानी नंदन को कट करने की कोशिश, ज्यादा दूर कर बैठे वाइट। स्कोर में 1 रन से और इजाफा होगा, 14 पर पहुंचा स्कोर। एक्स्ट्रा के रूप में 1 रन मिलेगा। दूसरी ओवर का खेल चल रहा है। जिलानी काफी लंबा रनअप है उनका। सामना कर रहे हैं बैट्समैन नंदन पाटिल। नंदन पे देखना है कितना बंधन लगा पाते हैं। अब तक लगा दिया है। बढ़िया गेंद, लगातार जिलानी की परीक्षा लेते हुए बहुत ही जोरदार अपील और अब जाके आसमान में उंगली। आउट हो गए बैट्समैन नंदन पाटिल। फारूक बर्डी का जाने का इशारा, हालांकि उतना सैटिस्फाइड नहीं है, लेकिन अंपायर इज द बेस्ट जज, क्योंकि नी कैच जब लगता है तो बहुत बारीक किनारा लगता है। बड़ी विकेट, नंदन पे बंधन लग गया, आउट होके जा रहे हैं। लेकिन जितनी कॉन्फिडेंस अपील थी, इससे लग रहा था जिस तरह से अपील हुई थी वहां पर, और रमीज रईस को 100% यकीन था कि बल्ले को छूने के बाद गेंद आई है। दूसरा झटका नंदन के रूप में। स्कोर केवल 14 रन। दूसरी ओवर का खेल चल रहा है। नए बैट्समैन, विकेट कीपर बैट्समैन वीरेश आए हैं बल्लेबाजी को। स्कोर है 14 रन 2 विकेटों के नुकसान पे। 14 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। साइंस को पता है कि जिस तरह पानियर के पास बल्लेबाजी है, एक अच्छा लक्ष्य उनको रखना होगा अगर चुनौतियां पानियर को देना है तो। कैप्टन जावेद भी बहुत अच्छे फॉर्म में वापस आ गए हैं। फाइक अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, माजिद चल रहे हैं, अकबर चल रहे हैं। रमीज रईस मुश्किल विकेट पे अच्छी बल्लेबाजी कर चुके हैं। उमर खान अच्छे टच में है। जिलानी राइट आर्म ओवर द विकेट आते हुए। विरेश को बढ़िया गेंद, फिर से बहुत जोरदार अपील, लेकिन इस मर्तबा अंपायर पे कोई दबाव नहीं। क्या गेंदबाजी कर रहे हैं। इट हैज बीन अ एक्सलेंट फास्ट बॉलिंग फ्रॉम जिलानी। बाल बाल बल्लेबाज बच रहे हैं। तारीफ का रन 2 विकेटों के नुकसान पे। 14 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट सोफा।
चिलानी। इस मरतबा पुश किया गेंद को, कवच में छुड़ा लिया रन वहां पर जब तक के खिलाड़ी उठाते हैं। 2 ओवर की समाप्ति पे 15 रन बने साइंस खारबाओं के 2 विकेटों के नुकसान पर। ये डगआउट दिखाया जा रहा है लेट इमरान पटेल प्लेस पवेलियन, जहां पर साइंस खारबाओं के खिलाड़ी बैठे हुए हैं। इस वक्त हमारे बीच आगमन होने जा रहा है शक्ति रेल टेक कंपनी के ओनर मालिक श्री रामजी विश्वकर्मा सेठ का, साथ ही साथ खेल की शुरुआत होती हुई उजैर इस मरतबा मोड़ दिया गेंद को, लॉन्ग लेग पे खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन बनता हुआ। भिवंडियन मिसाइल को गेंदबाजी दी गई है, 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 पे पहुंचा है। रणनीति को बदल दिया गया है, 4 मरतबा मैन ऑफ द सीरीज सूरज केने नंबर 1 पे रैंक कर रहे हैं, 2 पे फाइक हैं, 3 मरतबा, 3 पे किशन मात्रे और पवन केने। इस मरतबा घूम के मारने की कोशिश, बल्ले पे पूरी तरह गेंद नहीं आई, पहुंची डीप मिड विकेट पर 1 रन। गेंदबाजी में मानो शर्त लगी हुई है, 3 पे उसामा, 3 पे विवेक शिलार और 3 पे साकिब खान, 3-3 बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट के साथ
रेस लगी हुई है। हालांकि 2 पर सैफ शेख हैं। इस मरतबा खेल दिया गेंद को बहुत ही खूबसूरती के साथ। गेंद डीप फाइल लेग बाउंड्री की तरफ गई है, नहीं रोक पाए। 4 रन। इक्कीस रन हो चुके हैं। बल्लेबाजी की बात करें तो जयेश पाटिल 3 मरतबा, लेकिन 2 मरतबा में बिंदास लसने और यश पाटिल नाना स्पोर्ट। कल बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट जॉली के यश रहे थे और सीएम के। निकल के मारने की कोशिश, बहुत खूबसूरत गेंद, बीट किया वहां पर बैट्समैन को। साइंस खारबाओं का स्कोर इस वक्त 21 रन है। ये देखिए निकल के मारना चाहते थे, गेंद को बाहर निकाला था। डॉक्टर तौसीफ शेख, डॉक्टर मुबशिर और डॉक्टर फराज पटेल हमसे विदा लेते हुए। इस मरतबा यॉर्कर लेन की गेंद थी, ड्राइव किया गेंद को लॉन्ग ऑन पर, मिड ऑन डीप में उठाया फील्डर ने, 1 रन बनता हुआ। स्कोर आगे सरकता हुआ 22 पे पहुंचा है, 2 विकेटों के नुकसान पर। 22 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। अभी तक तो गेंदबाजी अच्छी हुई है, लेकिन बल्लेबाजी भी अच्छी हुई है। उजैर राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए, बढ़िया यॉर्कर, बल्ले के जड़ से लगी, रन लेना चाहते थे, मना किया वहां पर। 22 रन लगातार उजैर अपनी गेंदबाजी में वेरिएशन में तब्दीली कर रहे हैं। 3 ओवर की समाप्ति, 22 रन। हमारे बीच अभी भी जुड़ चुके हैं शक्ति रेल टेक कंपनी के मालक माननीय श्री रामजी विश्वकर्मा सेठ, जकी सूसे उप सरपंच वडोली, लाला भुरे ओनर ऑफ विश्ता ट्रक, अजहर घाटे और अकबर मुल्ला, आप सभी का इस्तकबाल है। डॉक्टर तौसीफ शेख, डॉक्टर मुबशिर ठानवाल और डॉक्टर फराज पटेल हमसे विदा लेते हुए गुड नाइट, शब बखैर। खेल की शुरुआत होती हुई माइक्रोफोन पर आइए मैं आवाज़ दूंगा कि परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीन से बैठ के क्या आसमान देखता है, और दिया है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर, संभल के चल तुझे सारा जहान देखता है। और परी हो या हो कोई शहजादी, जो इश्क करता है कब खानदान देखता है। आइए माइक्रोफोन पर नबील देवकर। बहुत बहुत शुक्रिया भावे सर। सब परिंदों से प्यार लूंगा, मैं पेड़ों का रूप धार लूंगा, तू निशाने पे अगर भावे आ भी जाए तो मैं कौन सा तीर मार लूंगा। 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर 22 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। साइंस स्पोर्ट खारबाओं। देखना अब चौथे ओवर के लिए पॉइनियर की ओर से किस गेंदबाज को बुलाया जाता है। आए हुए सभी दर्शकों का, सभी खिलाड़ियों का, सभी मेहमानों का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल है, हार्दिक स्वागत है A1 ट्रॉफी 2020 महापोली में 9 स्टार ग्रुप की ओर से। फाइक अंसारी को बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए। फाइक गेंदबाजी करेंगे महापोली एंड से। देखिए आज पुराने पाटिल टीम में नहीं है, उसका एक अच्छा लाभ उठा सकती है यहाँ पर फाइक अंसारी। 3 मरतबा मैन ऑफ द सीरीज है सूरज कहने के बाद। फाइक पहली गेंद लेकर, परफेक्ट वाइड यॉर्कर गेंद थी, 2 पैरों की दरार में से गेंद निकल गई,
विकेट कीपर रमीज के पास डॉट के रूप में। ये देखिए किस तरीके से बीट किया था। क्या गेंदबाजी कर रहे हैं आज पॉइनियर के गेंदबाज, तारीफ काबिल गेंदबाजी। वीरेश सामना कर रहे फाइक का, फिर एक बार ऑफ स्टंप के बाहर रखा था, लूज बॉटम एंड पुश। एक रन पूरा किया, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं वीरेश के लिए। 23 पर पहुंचा स्कोर साइस खारबाव का। अब स्ट्राइक पर आए हैं हर्षद, स्कोर 23 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। फाइक अंसारी मुड़ते हुए इस बार गेंद को स्वंग कर दिया है। ओहो, ये तो जाएंगी मैदान के बाहर। 6 रन सीधा वीआईपी राइस पर। जाके बहुत खूबसूरत पुल शॉट खेला। गेंद जब बल्ले से निकली तो ये देखिए दूर गगन की छांव में भेज दिया फाइक को। 6 रन। 29 पर पहुंचा स्कोर इस छक्के की मदद से। 2 विकेटों के नुकसान पर। तारीफ काबिल स्ट्रोक हर्षद का। फाइक मुड़ते हुए हर्षद के लिए, फिर एक बार गेंद जाएगी बाहर। 6 रन। कैप्टन लीडिंग फ्रंट। कप्तान है टीम के आज प्रणय की गैर मौजूदगी में, और क्या बल्लेबाजी कर रहे। 2 पे 2 आसमानी टोले और दोनों परफेक्ट टाइमिंग। ये देखिए क्रीज में पीछे खेल रहे थे, स्वंग कर दिया। जा रही है आउट ऑफ पार्क, हाई एंड हैंडसम। 6 रन। सिक्सर की हैट्रिक पे आ गए हर्षद पाटिल, मैन फ्रॉम टेम्बोली। फिर एक बार शॉट को दिखाया जा रहा है। 2 गेंदों में 2 लगाए हर्षद ने। फाइक मुड़ते हुए हर्षद के लिए इस बार इम्प्रोवाइज स्ट्रोक खेला है बहुत ही खूबसूरती के साथ। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन। इससे अच्छी बल्लेबाजी क्या हो सकती है कि फास्ट और फ्यूरियस गेंदबाज के सामने ये जो इम्प्रोवाइजेशन शॉट खेला है। आइए देखते हैं। ये देखिए पल्लू शॉट, दिलशान तिलक रत्ने का अंदाज, एबी डिविलियर्स का अंदाज। फाइन लेग ऊपर खड़ा था, गेंद सड़कती हुई। 4 रन। आइए फिर से देखते हैं। ये देखिए पल्लू स्ट्रोक। व्हाट अ ग्रेट बैटिंग फ्रॉम कैप्टन हर्षद पाटिल। 39 पर पहुंचा है स्कोर। इस ओवर में रन बन नहीं बल्कि बह रहे हैं। पिछली 3 गेंदों में 16 रन आए हैं। अब तक 17 रन खर्च किए फाइक अंसारी ने इस ओवर में। हर्षद बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे, 8 गेंदों का सामना किया है, 22 रन बनाकर खेल रहे। वीरेश 8 गेंदों में 8 रनों पर खेल रहे नॉन स्ट्राइक पर। हर्षद अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार। फिर एक बार गेंद को दिया है। ओहो, ये भी जाएगी बाहर। 6 रन। क्या कहेंगे भाभे सर? दिस इज द क्लेवर बैटिंग। दिस इज द क्लेवर बैटिंग फ्रॉम कैप्टन ऑफ साइंस खारबाव हर्षद पाटिल। ही इज लुकिंग अ डिजास्टर मैन। Look at that, another big one. Swung away around the off stump, going, gone out of park. 6 runs. अटैक भी किस पर किया है? तालुका क्रिकेट के फोकस ऑलराउंडर पर अटैक। 45 पर पहुंचा है स्कोर इस छक्के की मदद से 4 ओवरों की समाप्ति के बाद। यस, कहा जाता है मजबूत कड़ी पे जब अटैक करते हैं आप तो बाकी कड़ियां खुल जाती है, और लोहा जब गर्म हो तो हथौड़ा जब ही लगाना चाहिए। ये देखिए खुशी का माहौल डगआउट में।
देखिए 3 गेंदबाजों ने केवल 22 रन दिए थे, फाइक अंसारी ने चौथे ओवर में 23 रन दे डाले। यस, टेनिस क्रिकेट में वैसे भी मार्जिन ऑफ एरर काफी कम रहता है। आइए हम सत्कार प्रोग्राम की तरफ बढ़ रहे हैं। सत्कार प्रोग्राम होने जा रहा है। हमारे बीच शक्ति रेल टैग कंपनी के ओनर माननीय श्री रामजी विश्वकर्मा हैं। मैं किंग मेकर कामरान भाभे से कहूँगा कि उनका सत्कार, सम्मान और स्वागत करें। कामरान भाभे के हाथों से हम रामजी विश्वकर्मा सेठ का सत्कार, सम्मान और स्वागत करने जा रहे हैं। नबील भाभे के हाथों से हम अजहर घाटे साहब घाटे क्रेन सर्विस के नबील भाभे के हाथों से हम अजहर घाटे की इज्जत अफजाई करने जा रहे हैं। मोर्चे पे उसामा को लगाया गया है। नबील भाभे इज्जत अफजाई करते हुए बैक टू क्रिकेट। 5वें ओवर के लिए अब उसामा को बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए। सामना करेंगे वीरेश। पिछली ओवर में बहुत महंगे साबित हुए फाइक अंसारी। उसामा इस बीच गेंद स्वंग करने की कोशिश, मिस टाइम स्ट्रोक है, गेंद हवा में। बढ़िया कोशिश उसामा की, कैच नहीं कर पाए। आसान भी नहीं होता है फ्लड लाइट में ऐसे कैचेस को अंजाम देना। बिल्कुल, अगर ये कैच पकड़ते तो मापोली एवन ट्रॉफी का सबसे एवन कैच रहता। बहुत बढ़िया कोशिश, अपने आप को छोक दिया था उसामा ने। युतिका स्पोर्ट्स के कैप्टन और जैलीस के कैप्टन, ये भी एक इत्तेफाक है कि इस सीजन में ये दोनों टीमें पहली मर्तबा टकरा रही। कहीं ऐसी टीमें जो पहली मर्तबा आमने सामने आई है मापोली एवन ट्रॉफी में, जिस तरह महेंद्रा और मैगी पहली मर्तबा टकराई थी। 47 पर पहुंचा स्कोर। उसामा अगली गेंद लेकर, बहुत खूबसूरत गेंद बीट करती हुई पहुंची विकेट कीपर के पास डॉट के रूप में। बहुत खूबसूरत वाइड यॉर्कर गेंद थी, पूरी तरीके से बीट किया था बल्लेबाज वीरेश को। स्कोर 47 पर रुका हुआ। 5वें ओवर का खेल चल रहा है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करिए साइस स्पोर्ट्स खारबाओ पॉइनियर स्पोर्ट्स के सामने। इस बार खड़े खड़े स्वंग किया गेंद को, गेंद आउट ऑफ द पार्क, 6 रन। देखिए उसामा के सामने इस तरह के स्ट्रोक इतने आसान नहीं रहते। क्या टाइमिंग था, क्या फॉलो थ्रू था, स्टैंड एंड डिलीवर।
ये देखिए थोड़ा आगे रख दिया था वहां पर, स्टैंड एंड डिलीवर विदेश के बल्ले से। खरबूजे को देखकर अब तरबूजे ने भी रंग बदल दिया। 53 रनों पे पहुंचा है स्कोर इस छक्के की मदद से। 5वें ओवर का खेल चल रहा है, अब रन बह रहे हैं साइस खारबाव के लिए। देखिए अब खतरे की घंटी बजती हुई, क्योंकि 53 रन एक अच्छा टोटल है। 5वें ओवर का मैच चल रहा है। हालांकि पायनियर के पास भी ऐसे बैट्समैन हैं जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन यहां से ज्यादा अगर रन बनेंगे तो बल्ले। फिर एक बार अच्छी गेंद, बढ़िया वापसी, तारीफे काबिल गेंद। छक्का खाने के बाद लगातार 3 डॉट गेंदे। हमारे से जुड़ चुके हैं तौसीफ सऊद पटेल, आपका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल है। 5 ओवर की समाप्ति पे रन बने साइंस खारबाओं के 53 रन। टॉस के लिए यूटी का स्पोर्ट और जैलिस दोनों को आना है। पांच ओवरों की समाप्ति, स्कोर 53 रन। देखना अब छठे और आखिरी ओवर के लिए भिवंडियन मिसाइल उजैर को बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए। उजैर मुड़ते हुए, बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, सीधे ब्लेड से सीधे ड्राइव किया। जावेद जब तक गेंद को उठाते दूसरे के लिए निकल पड़े। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन पूरे। हमारे बीच फराज थानवाल साहब तशरीफ ला चुके हैं। हम आपका अमी के दिल से इस्तकबाल कर रहे हैं मापोली A1 ट्रॉफी में। वेलकम। 55 रनों पर पहुंचा है स्कोर। 10 गेंदों में 30 रन बनाकर खेल रहे हर्षद पाटिल। ऐसे मौसम में कमाल की बल्लेबाजी हम देख रहे हैं हर्षद की। इस बार गेंद को खेल दिया है, बढ़िया स्ट्रोक, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। क्या कॉन्फिडेंस था हर्षद पाटिल को कि गेंद बाउंड्री के बाहर जाएंगी। हिले भी नहीं थे। शॉट खेला और वहीं रुके रहे। आज बहुत कॉन्फिडेंस में बल्लेबाजी कर रहे हैं हर्षद पाटिल। 11 गेंदे 34 रन बनाए और टीम का स्कोर इस वक्त 59 पर पहुंचा है। It has been a great stroke with the straight pad firmly driven. No chance to long on, one bounce cross the boundary for 4. देखिए बाबे सर, अब यहाँ से जो रन बनेंगे वो एक प्लस पॉइंट रहेगा साइस खारबाव के लिए, क्योंकि आपने भी देखा इस विकेट पर देर रात रन बनाना आसान नहीं है। Yes, absolutely true. इस बीच ये गेंद 1 रन बना, दूसरे के लिए जा रहे और 2 रन पूरे। 61 रनों पर पहुंचा है स्कोर। क्योंकि अब तक हमने देखा है देर रात में जो भी टीमें चेसिंग करती है बहुत ही कम जीत पाती है। इस विकेट पर लास्ट ऑफिशियल कॉल यूतिका के कैप्टन और जैलिस, यूतिका के आ चुके हैं जैलिस के कैप्टन। स्विच हिट करना चाहते थे, बीट हुए अरशद, डॉट गेंद। फिर एक बार अच्छी गेंद, लंबा स्ट्रोक खेलने के चक्कर में बीट हो गए वहां पर हर्षद। क्या गेंदबाजी करे उजैर, लगातार 2 डॉट गेंदे। स्लॉग ओवर में बढ़िया वापसी,
पहली 3 गेंदों पर 8 रन खर्च किए, उसके बाद 2 डॉट गेंदे। उजैर मुड़ते हुए बढ़िया गेंद, रन के लिए जा रहे, 1 रन पूरा किया, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। इस 1 रन से स्कोर 62 पर पहुंचा और 63 रनों की चुनौती रखी है साइस खारबाव ने पायनियर स्पोर्ट्स के लिए। देखिए ये मैच बहुत कट टू कट रहेगा क्योंकि पॉइनियर के पास भी जवाब देने वाली बल्लेबाजी है। और देखना ना भूलिए, बने रहिए हमें हमारे साथ, कहीं भी मत जाइएगा। स्टिल ट्यूनिंग विद अस इन मापोली एवन ट्रॉफी। लेकिन आइए एक एवन मुकाबले के टॉस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। खेलने वाली टीमें भरत और नवनाथ पाटिल फेम टीम युतिका और तारिक रईस फेम टीम जैलिस। बाबा साहेब अम्बेडकर टॉस बॉक्स में मैं दोनों मान्यवर्स को आवाज दूंगा। हमारे रामजी विश्वकर्मा सेठ और साथ में गौतम गायकवाड जी जो कि पिताश्री हैं शैलेश गायकवाड के। ऑल द बेस्ट वैभव पाटिल एंड ऑल द बेस्ट हरीश केने। गौतम गायकवाड जी जो पिताश्री हैं शैलेश गायकवाड के, उनके साथ रामजी विश्वकर्मा सेठ, शक्ति रेलटेक कंपनी के ओनर हैं शैलेश के पिताश्री। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेंगे, आपके लड़के ने बहुत नाम किया। और जकी सुसे उप सरपंच वडोली। वेलकम सर। आइए, सिक्के का तो आपको पता है, 1 नहीं 9 स्टार और मापोली एवन ट्रॉफी। मापोली एवन ट्रॉफी कहना है युतिका के कैप्टन का, देखना आया क्या है। 9 स्टार टॉस को जीता है इस वक्त। जकी आपसे रिक्वेस्ट है कि टॉस विनिंग कैप्टन को देना है बतौर यादगार। बहुत बहुत शुक्रिया। उप सरपंच से आप सरपंच बने, यही हमारी ख्वाहिशें हैं वडोली की। गायकवाड सर, आपके बच्चे ने बहुत बड़ा नाम किया और राम जी आप जी ने आकर एवन ट्रॉफी में शोभा बढ़ाई। बहुत बहुत धन्यवाद। हरीश, रात के मैचेस के टॉस इंपॉर्टेंट रहते हैं, बहुत ही निर्णायक टॉस जीता है, क्या करेंगे? बैटिंग करेंगे। बिल्कुल, चेस करना मुश्किल हो जाएगा, ठंड बढ़ रही है, गेंदें रुक कर आ रही है। लेकिन हरीश, आप दिन के और रात के मैचेस में माइंड सेट अलग रहता है कैप्टन का। आप क्या चाहते हैं कि 6 ओवर में आप कितने रन बनाएं जहां पर आपके गेंदबाज डिफेंड करें? अभी सर 55-50 तक जाना चाहिए और अच्छा मैच होगा और अच्छा खेलने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाने की कोशिश करेंगे। खिजर थोड़ा जल्दी आउट हुए, लेकिन आपके साथ और कौन से बैट्समैन का कोई चेंजेस हैं? अभी सर चेंजेस तो कोई नहीं है, अच्छा परफॉर्मेंस करने की कोशिश करेंगे। 11 लोग अच्छा खेलेंगे तभी मैच जीतेंगे। धनेश, कब से आपकी टीम ने फिर से वही खेल दिखा है जिसके लिए आपकी टीम जानी जाती है, तो उम्मीद करें कि एक और कदम आगे आप रखने जा रहे हैं। जरूर बाबे सर, अच्छा खेलने की कोशिश करेंगे और जीतने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि दोनों टीमें पहली मर्तबा टकरा रही, इस सीजन में आपका उनका मैच नहीं हुआ है, तो एनालाइज तो आप करके आए होंगे, लेकिन ट्रम्प कार्ड स्वयं कैप्टन रहेंगे या कपिल केने? सब रहेंगे ट्रम्प कार्ड। 11 अच्छा खेलेंगे तो सभी ट्रम्प कार्ड रहेंगे बाबे सर, अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे और जीतेंगे। ऑल द बेस्ट। वैभव, टॉस जिंकला असता ते काय करते? बॅटिंग केली असती। आता तुम्हाला गोलंदाजी करायची, समोरची टीम फार घातक टीम आहे, किलर स्ट्रिक टीम आहे, काय माइंडमध्ये लक्ष असेल का 6 ओव्हरमध्ये किती रनापत थांबवणं? 60च्या आम्ही 50पर्यंत त्यांना थांबवायचा प्रयत्न करू। सूरज केने ची काय अपेक्षा आहे? सूरजपासून 100% द्यायची अपेक्षा आहे। आणि फलंदाजीना कर्णधार ओपनिंग करतील? मॅचच्या सिच्युएशननुसार बघूयात काय आहे। एक अटीतटीचा सामना होईल। हो नक्कीच होईल। ऑल द बेस्ट।
The news from the toss box is Jallis won the toss and absolutely right decision, elected bat first. Back to the commentary box. थैंक यू भावे सर, एक अलग नया फ्लेवर ले आए आप भी. साई की तरफ बढ़ते हैं. मंच पर उपस्थित जनाब अकबर मुल्ला साहब की हम इज्जत अफजाई करने जा रहे हैं. साथ में अभी अभी मंच पर शुभागमन हुआ है जनाब रफीद बाउद्दीन साहब का, उनका भी हार्दिक स्वागत. मैं गुलाम हलवे से निवेदन करता हूं कि अपने शुभ हाथों से जनाब अकबर मुल्ला साहब की इज्जत अफजाई करनी है. आप देख रहे हैं इस समय मापोली A1 ट्रॉफी 2020 9 स्टार ग्रुप और A1 ग्रुप की ये पेशकश दावत क्रिकेट. मंच पर जनाब अकबर मुल्ला साहब की इज्जत अफजाई करते हुए गुलाम हलवे. उसके बाद मैं कामरान भावे से निवेदन करता हूं कि मंच पर उपस्थित तौसीफ सऊद पटेल साहब की इज्जत अफजाई करें. कामरान भावे जो मापोली के किंग मेकर और मास्टरमाइंड है, उनके शुभ हाथों से इज्जत अफजाई होती हुई जनाब तौसीफ सऊद पटेल साहब की. एक बार फिर से सभी मेहमानों का मापोली A1 ट्रॉफी 2020 में दिल की गहराइयों से स्वागत और सभी दर्शकों का भी हार्दिक हार्दिक स्वागत. चलते हैं खेल की तरफ. बड़ा टारगेट है बड़ी टीम के सामने. पायनियर स्पोर्ट्स 63 रनों का पीछा करने के लिए यहाँ पर पूरी तरह से तैयार. दोनों भी सलामी बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके हैं. उमर खान और उनके साथ रमीज रईस. थैंक यू डीजे. पहला ओवर लेकर ऋषभ. पहली गेंद मोटा सिरा और गेंद विकेट कीपर को बीट करती हुई शॉर्ट थर्ड मैन पर चली गई, लेकिन बढ़िया फील्डिंग. बाहरी किनारा लगा था बल्ले का. विकेट कीपर ने अपने आप को झोंक दिया वहां पर गेंद को रोकने के लिए, लेकिन उनके थोड़ी पहुंच से बाहर थी. पहली गेंद पर 1 रन. खाता खुलता हुआ उमर खान का. उमर खान ने इस सीजन में बहुत ज़बरदस्त बल्लेबाजी की है. अच्छे फॉर्म में रहे हैं पूरे सीजन में. उनकी तकनीक ने सभी को प्रभावित किया है. रमीज एक अनुभवी खिलाड़ी. लॉफ्ट करने का प्रयास बिना देखे सोचे समझे. ऐसे लगा कि स्ट्रोक खेलने की कोशिश की थी. जिस तरह से बल्ला घुमाया था, गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं. बड़ी चुनौती पेश की है इस बड़े मैच में साई स्पोर्ट्स खारबाव टीम ने. साई स्पोर्ट्स के लिए हर्षद और वीरेश ने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की. हर्षद ने 37 रनों की धुआंधार पारी खेली और 16 रनों का योगदान दिया वीरेश ने, जिसके चलते टीम 62 तक पहुंची 6 ओवर्स में. फुल टॉस गेंद इस बार स्विंग कर दिया ऑन साइड में. बेहतरीन स्ट्रोक. 6 रन. ब्रांडों की घड़ी हाथों में परफ्यूम गुची वाला बट पप्पू can't dance साला पप्पू can't dance साला. फुल टॉस गेंद थी. ये तो की मैन है पॉइनियर के. फुल टॉस गेंद को ये अगर बाहर नहीं भेजेंगे तो कौन भेजेगा. तारीफ काबिल स्ट्रोक. जी हाँ, बिल्कुल सही कहा नबील आपने. कोई भी बल्लेबाज होता तो शायद इस गेंद का यही हश्र करता. तोहफा था एक तरह से रमीज के लिए. उसको कबूल करते हुए दोनों भी हाथों से एक ऊंचा सिक्सर डीप मिड विकेट के ऊपर. ताबड़तोड़ शुरुआत की कहीं ना कहीं ज़रूरत है पायनियर स्पोर्ट्स को. एक लंबा टारगेट है उनके सामने और इस बार वाइड यॉर्कर. क्या करारा जवाब दिया है सिक्सर लगने के बाद ऋषभ ने. ज़बरदस्त नोकझोंक. बढ़िया वापसी सिक्सर खाने के बाद. पूरी तरीके से बीट किया था वहां पर रमीज रईस को. छक्का लगने के बाद रफ्तार भी बढ़ा दी बॉलर ने. रमीज रईस ने चॉप करने की कोशिश की थी, लेकिन गेंद पहले ही निकल गई थी. इस बार हाफ वाली में लेकर ड्राइव किया हवा में और वहां पर कैच ड्रॉप. नंदन से गलती. गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर. 4 रन. जोर का झटका है जोरों से लगा लगा शादी बन गई उम्र कैद की सजा सजा.
पैरों के सामने से उठा दिया था। मौका इतना आसान नहीं था, लेकिन बनाना चाहिए था। बड़े मैचेस में आपको हाफ चांस को भी फुल में कन्वर्ट करना होता है। बिल्कुल, और कई बार हम देख चुके हैं इस तरह के कैचेस लेने के बाद किस तरह से खेल पलट जाता है। तो थोड़ा भी मौका आपको मिलता है तो उसको भुनाने की ज़रूरत है। ऋषभ की अगली गेंद, इस बार बहुत ही करारा कवर ड्राइव, लेकिन सीधे फील्डर के पास तेज सिंगल पूरा करते हुए वहां पर रमीज रईस बल्ले के बीचों बीच लेकर ड्राइव किया था। मधुर ध्वनि भी निकला था, लेकिन प्लेस नहीं कर पाए। अच्छी शुरुआत यहाँ पर पायनियर स्पोर्ट्स की। स्कोर 12 रन बिना किसी नुकसान के। पहले ओवर की समाप्ति। एक ओवर की समाप्ति, स्कोर 12 रन। अच्छी शुरुआत कहेंगे हम इस वक्त पायनियर स्पोर्ट्स के लिए, बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अब 5 ओवर में जीतने के लिए रन चाहिए 51। मोमेंटम कहीं ना कहीं रमीज रईस के पास नजर आ रहा है। जिस तरह से अच्छे शॉट्स लगाए उन्होंने पहले ओवर में, मिड विकेट के ऊपर छक्का, फिर मिड ऑफ की दिशा से चौका भी जड़ा, और अंतिम गेंद पर जो शॉट खेला था वो शायद सबसे अच्छा स्ट्रोक था, लेकिन वो गैप में नहीं खेल पाए थे। लेकिन आत्मविश्वास उनका बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से गेंदों को मिडल कर रहे हैं रमीज रईस। एक लंबी पारी यहाँ पर खेलने की कोशिश करनी होगी। अच्छा स्टार्ट मिला है तो उनका उत्तरदायित्व बनता भी है कि एक लंबी पारी खेले और अपनी टीम को जिताए। बिल्कुल, लंबी पारी भी खेलनी होंगी और एक अच्छी पार्टनरशिप बनानी होंगी दोनों ही बल्लेबाज को, अगर टीम को जीत हासिल करानी है तो। देखना अब दूसरे ओवर के लिए किस गेंदबाज को बुलाया जाता है साइस खारबाव की ओर से। खारबाव टीम की ओर से हम देखें तो कहीं ना कहीं जल्द से जल्द इस पार्टनरशिप को तोड़ना होगा। ब्रेक थ्रू की आवश्यकता है। पायनियर स्पोर्ट्स की बल्लेबाजी काफ़ी मजबूत है। खासतौर पर आने वाले बल्लेबाजों में हम देखें तो अकबर और फाइक अंसारी, 2 युवा खिलाड़ी बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है। जावेद को कैसे हम बोल सकते हैं, खतरनाक जावेद। वो तो जालिम बल्लेबाज है, किसी पर रहम नहीं करते जब वो शुरू हो जाते हैं तो। कल जॉली ट्रॉफी में उनका रनआउट होना बहुत भारी पड़ा। बढ़िया बैटिंग कर रहे थे, लेकिन उनके रनआउट होने के बाद खेल काफ़ी बदल गया और आखिरकार मैच को गंवाना पड़ा पायनियर स्पोर्ट्स को। स्ट्राइक के समय रमीज रईस के पास। नेवर लेकर दिनेश, टिम्बोवली के ये खिलाड़ी साई स्पोर्ट्स खारबाव टीम के लिए खेलते हुए भिवंडी सिटी क्रिकेट में ऑन साइड में खेलना चाहते थे। गेंद के बारे में कुछ ज़्यादा समझ नहीं पाए थे। दिनेश की बॉलिंग की ये खासियत है, इनके पास ज़्यादा पेस नहीं है, लेकिन बड़े ही चतुराई के साथ गेंदबाजी करते हैं। इस बीच हमारे बीच में हमसे जुड़ते हुए जालिस स्पोर्ट्स के करता धरता तारिक रईस हमसे जुड़ते हुए। वेलकम। A1 ट्रॉफी 2020 में 9 स्टार ग्रुप की ओर से आपका इस्तकबाल है। प्रजूश खैर मकदम है। इस बार गेंद हवा में है, 2 खिलाड़ियों के बीच में से निकाल दिया। शानदार स्ट्रोक, रमीज रईस बहुत ही बढ़िया बैटिंग करते हुए। 4 रन। बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है, इधर जाने का नहीं। और मेरे बेटे किसी से इश्क कर, मेरे बेटे किसी से इश्क कर, मगर हद से गुजर जाने का नहीं। हाय हाय भाई, क्या बात है, क्या बात है। हमारे बीच में यासीन पटेल मौजूद है। आपको VIP डाइस में आना है, उनके साथ में मोतसिम भाबे, आपको भी VIP डाइस पर आकर बैठना है। इसे बीच अगली गेंद लेकर दिनेश। इस बार दूर से बल्ला चलाया, गेंद गैप में जा रही है, लेकिन फील्डर पहुंचते हुए गेंद तक बैकवर्ड पॉइंट पर उठाया, तब तक 1 रन। पहुंचना पड़ा था वहां पर रमीज रईस को स्ट्रोक खेलने के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ 17 रन। जी नबील। अजय गलत, आज रमीज रईस बहुत ही टच में नजर आ रहे हैं। आप देखें गेंद को बल्ले के मिडल में लेके बल्लेबाजी कर रहे। जी बिल्कुल, अच्छे शॉट्स लगा रहे हैं। अभी तक ज़्यादा गेंदें भी हालांकि उन्होंने ही फेस की है इस पारी में। उमर खान ने सिर्फ 1 गेंद खेली है, 1 पर बैटिंग करते हुए। स्ट्राइक इस समय उमर खान के पास। 17 पर पहुंचा है स्कोर, अभी भी और 46 रनों की जरूरत। इस बार उमर खान ने प्रहार किया है, स्लॉक कर दिया है डीप मिड विकेट की दिशा में, गैप में खेल दिया है। टाइमिंग हालांकि 100% नहीं थी, लेकिन बढ़िया दौड़ विकेटों के बीच में 2 रन पूरे। रमीज रईस की यहाँ पर सराहना करनी होगी। डेंजर एंड पर दौड़ रहे थे, लेकिन बहुत ही तेज दौड़ लगाई उन्होंने। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। दोनों ही बल्लेबाजों के बीच यस नो और वेट का तालमेल बहुत बढ़िया देखने को मिला पिछली गेंद पर। हमारे बीच
समीर सोसे और सलमान खोदकर भी पहुंच चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, उनका जबरदस्त स्वागत है मापुली एवन ट्रॉफी 2020 में। काफी अच्छी शुरुआत हम देख रहे हैं पायनियर स्पोर्ट्स की। इस बार स्विच हिट लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाए, बैकवर्ड पॉइंट पर फील्डर काफी सतर्क, हालांकि सिंगल रहने से रोक नहीं पाए वहां पर उमर खान को पता है कि यहाँ पर उन्होंने मौका गवा दिया है चौका लगाने का, अपने आप से निराश नजर आ रहे हैं क्योंकि गेंद फुल टॉस बनी थी, पोजीशन भी अच्छी थी उनकी शॉट खेलने के लिए, लेकिन गैप में नहीं खेल पाए। लो फुल टॉस गेंद भी मिली थी उन्हें, स्विच हिट किया था, बिल्कुल सही कहा, अपने गैप नहीं ढूंढ पाए। और देखिए इनफील्ड के ऊपर से खेलते तो भी चौका मिल जाता, वहां पर बैकवर्ड ऑफ द पॉइंट ऑफ साइड में कोई भी खिलाड़ी बाउंड्री पर नहीं है। दिनेश एक बार फिर से अभी तक 8 रन खर्च किए अपने ओवर में। इस बार सीधे बैट से बहुत ही सुंदर ऑन ड्राइव गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन पर, एक रन पूरा किया, 2 की कोशिश और बेहतरीन दौड़ विकेटों के बीच में, सराहनीय रनिंग बिटवीन द विकेट्स। तारीफ है काबिल रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों के बीच। यस नो और वेट का तालमेल जो है वो बहुत बढ़िया नजर आ रहा है उमर खान और रमीज रईस के बीच। 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर 22 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अब 24 गेंदों में 41 रनों की जरूरत है पायनियर स्पोर्ट्स को, 10 विकेट हाथ में। ये मंच का नजर आपकी स्क्रीन पर, कई मेहमान वहां पर 9 स्टार ग्रुप ने काफी मशक्कत की है, मेहनत की है टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए, और उनके कंधे से कंधा यहाँ पर मिलाया है एवन ग्रुप ने। काफी अच्छा मैच, 22 रन बिना किसी नुकसान के पायनियर स्पोर्ट्स, अच्छा रन चेस देखने को मिल रहा है। बचे हुए 4 ओवर्स में 41 रनों की जरूरत है, आवश्यक रन रेट 10.25 रन प्रति ओवर का है। थोड़ी सी स्थिति नबील मुझे ऐसे लग रहा है कि पायनियर स्पोर्ट्स की मजबूत हो गई है, लेकिन अब पावर प्ले समाप्त हुआ है और अब कहीं ना कहीं सही मायनों में अग्नि परीक्षा रहेगी बल्लेबाजों की। पावर प्ले में तेज गति से रन बनाना थोड़ा सा आसान होता है, लेकिन अब 5 खिलाड़ी बाउंड्री पर रखे जाएंगे नॉन पावर प्ले फेज, और बॉलिंग में भी शायद परिवर्तन होगा। पहला ओवर ऋषभ ने किया था, समय के मामले में सहयोग करना है साई स्पोर्ट्स खारबाव टीम। सिद्धार्थ राप्टे आक्रमण पर आते हुए, तो बॉलिंग में परिवर्तन किया गया है। बायत के गेंदबाज एक युवा होनहार खिलाड़ी है। पूरी तरह से यदि साई स्पोर्ट्स खारबाव टीम को मैच में वापस आना है तो एक दो क्विक विकेट्स अब चाहिए। बिल्कुल, ये पार्टनरशिप को तोड़ना होगा साइज खारबाव को अगर मैच में वापस आना है तो। प्लेटफॉर्म तो बहुत अच्छा बनाया है दोनों भी सलामी बल्लेबाजों ने। उमर खान एक ऐसे बल्लेबाज इस सीजन में नजर आए हैं जो गेम को लेकर चलते हैं, आसानी से विकेट फेंकते नहीं है। इस बार देखा पर का जाने दिया, वाइड ऑफ स्टंप के काफी बाहर। अब 24 गेंदों में 40 रन चाहिए। 1 रन मिलता हुआ एक्स्ट्रा के रूप में पायनियर स्पोर्ट्स को। अब 24 गेंदे और 40 रन। देखिए विकेट यदि चाहिए यहाँ पर साई स्पोर्ट्स खारबाव टीम को तो दबाव बनाना होगा, उसके लिए डिसिप्लिन चाहिए बॉलिंग में, दिशाहीन गेंदबाजी आप नहीं कर सकते हो। अच्छी गेंद इस बार सम्मानजनक तरीके से खेला है, खोदकर निकालना पड़ा, लगभग यॉर्कर लेन थी। तो ये खासियत है दोनों भी बल्लेबाजों की, हम देखें तो सीधे बैट से बहुत अच्छा खेलते हैं। रमीज रईस बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी है, सीनियर खिलाड़ी है, और जब से उन्होंने खेलना शुरू किया वो सीधे बैट से अच्छे ही शॉट्स खेल रहे हैं। वी में तो बहुत ही स्ट्रांग है, और उमर खान भी, हालांकि उमर खान स्क्वायर ऑफ द विकेट भी बढ़िया खेलते हैं, और रमीज के साथ भी वही बात है, स्क्वायर ऑफ द विकेट भी दोनों तरफ बहुत अच्छे शॉट्स लगाते हैं। बिल्कुल, वी में बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं रमीज रईस। इस बीच अगेन फिर एक बार खोद के निकाला ऑन ड्राइव, 1 रन पूरा किया, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं, से 1 रन से स्कोर 25 रनों पर पहुंचा है। फिलहाल तो हम देख रहे हैं कि दोनों भी सलामी बल्लेबाज इस मैच को चला रहे हैं, मैच की ड्राइविंग सीट पर नजर आ रही है पायनियर स्पोर्ट्स, और कहीं ना कहीं पैसेंजर्स की तरह नजर आ रही है साई स्पोर्ट्स खारबाव टीम। हालांकि टोटल बहुत बढ़िया बनाया साई स्पोर्ट्स ने। मैच रोकना है अंपायर्स थोड़ी देर के लिए। हमारे बीच तशरीफ लाते हुए मापोली एवन ट्रॉफी 2020 में जाइल स्पोर्ट्स के करता धरता
पर्सनालिटी जिनका यहाँ पर शुभागमन हुआ है, जनाब तारिक रईस साहब, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत। हमारे बीच में रहमान कोतकर और तकी बाउद्दीन आ चुके हैं, आपको वीआईपी डाइस पर आना है, वेलकम। इस बार क्रॉस बैटेड शॉट की कोशिश की थी, फ्रंट फुट को काफी आगे खींचा था, कमिट हो गए थे फ्रंट फुट पर शॉट खेलने के लिए, लेकिन बल्ले पर नहीं ले पाए वहां पर उमर खान। स्कोर रुका हुआ है 25 पर, 19 पर बैटिंग कर रहे रमीज रईस, 5 गेंदों पर 5 रन बनाए हैं उमर खान ने, और अब जीतने के लिए 21 गेंदों में 38 रनों की आवश्यकता पायनियर स्पोर्ट्स को। विकेट की तलाश में गेंदबाज सिद्धार्थ, इस बार लॉफ्ट कर दिया है, सामने फील्डर मौजूद है और बढ़िया कैच। पहले विकेट का पतन होता हुआ उमर खान अपना संयम गवा बैठे, आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए। पाहिजेल तेवढ्या मी देईन दिरक्या तुलार, पाहिजेल तेवढ्या देईन दिरक्या तुलार, सामना जिंकून दाखव बारक्या मलार, यो सामना जिंकून दाखव बारक्या मलार, अरे पाहिजेल तेवढ्या देईन दिरक्या तुलार, पाहिजेल तेवढ्या। पहला झटका लगता हुआ पायनियर स्पोर्ट्स को, उमर खान के रूप में नए बल्लेबाज भिवंडी के डिकॉक माजिद जा रहे बल्लेबाजी के लिए। रमीज रईस का साथ निभाने के लिए माजिद आए अब बल्लेबाजी के लिए। मेराज पटेल भी हमसे जुड़ते हुए वेलकम। इमरान घाटे इस वक्त हमसे विदा लेते हुए। सिद्धार्थ मुड़ते हुए। खेल कहीं ना कहीं थोड़ा सा धीमा हो गया है पावर प्ले खत्म होने के बाद। सिद्धार्थ का ओवर बहुत अच्छा साबित हो रहा है, इस युवा बॉलर ने भी प्रभावित किया है, लेकिन अभी भी उनका काम पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। मैच बहुत ही रोचक स्थिति में है, 20 गेंदें शेष, 38 रनों की जरूरत। रमीज रईस सामना करते हुए अगली गेंद का। इस बार अपीश खेला है, वहां पर एक्स्ट्रा कवर पर कैरी नहीं हुई गेंद। ओ दूसरे के लिए पलट रहे हैं, ना आओ देखा ना था, वहां पर रमीज रईस ने अपना विकेट खो दिया है, उन्होंने रन आउट। बड़ा विकेट। जो तालमेल था पहले 3 ओवर तक रमीज रईस और उमर खान के बीच, वो टूट गया था। उसके बाद आपने देखा तालमेल ही नहीं था, जिस तरीके से रमीज रईस निकल पड़े थे क्रीज छोड़कर अजय गरत। और जहां तक मैं क्रिकेट को समझता हूं, मैं समझता हूं कि यहाँ पर पूरी तरह से गलती थी रमीज की। दूसरा रन बिल्कुल भी नहीं था, वहां पर थोड़ा सा मिसफील्ड जरूर हुआ था, लेकिन वो 1 रन के लिए पर्याप्त था। दूसरा रन बिल्कुल भी नहीं था वहां पर, तो खुद की गलती की वजह से रन आउट हुए। बहुत बढ़िया शुरुआत दी रमीज रईस ने अपनी टीम को, 20 रन बनाने के बाद आउट हुए। उन्होंने अपना विकेट यहाँ पर एक तरह से फेंक दिया है, जो कि काफ़ी घातक साबित हो सकता है पायनियर स्पोर्ट्स के लिए, और मैच में पूरी तरह से पलट कर आ चुकी है साई स्पोर्ट्स खारबाव टीम। देखिए अजय गरत, अब दोनों ही नए बल्लेबाज पिच पर आ चुके हैं, मैच क्रूशल स्थिति में है। अब यहाँ से मैच बनाना भी है और जीतना भी है। कठिन परिस्थिति रहेंगी यहाँ पर पायनियर के दोनों ही बल्लेबाजों की। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा नबील आपने, मैच बनाना भी है और जीतना भी है। नेक टू नेक फाइट है इस समय। स्कोर 26 रन 2 विकेटों के नुकसान पर, अभी भी 1 गेंद शेष है तीसरे ओवर में। कुल मिलाकर 19 गेंदें शेष है, 38 रनों की आवश्यकता है, प्रति गेंद 2 रन चाहिए औसतन। छोटी बैकलिप का इस्तेमाल हल्के हाथों से खेला है, दूसरे के लिए पलटना चाहते हैं और पलटे भी है। यहाँ पर भी फिर से मौका था रन आउट का, फाइक का विकेट खतरे में था, लेकिन थ्रो थोड़ा ऊंचा था, तेज था और गैदर नहीं कर पाए वहां पर बॉलर। बाल बाल बच गए फाइक अंसारी। 2 रन पूरे, स्कोर बढ़ता हुआ 28 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 3 ओवर की समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर 28 रन 2 विकेटों के नुकसान पर पायनियर स्पोर्ट्स। पिछली गेंद पर हमने देखा बाल बाल बच गए फाइक अंसारी। अट्ठाईस बने हैं कुल मिलाकर, 63 की चुनौती, 35 रन चाहिए 3 ओवर्स में। बहुत ही रोमांचक स्थिति में ये मैच
पहले राउंड का आज का अंतिम मैच है सिटी क्रिकेट का। इसके बाद दूसरे राउंड का मुकाबला देखना मत भूलिएगा, युतिका स्पोर्ट्स और जाइलिस के बीच में। तारीफ काबिल गेंदबाजी की अजय गरत सिद्धार्थ ने केवल 6 रन खर्च किए और एक विकेट भी हासिल किया। आवाज कोणाचा, आवाज जनतेचा, दाही दिशा सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। महापोली एवन ट्रॉफी 2020 मध्ये शुभागमन होत आहे। माननीय श्री सुयोग पाटील साहेबांचं आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत। तसेच सन्माननीय खालिक मुल्ला साहेब शिवसेना अल्पसंख्याक अध्यक्ष पालघर जिल्हा यांचं देखील शुभागमन होत आहे। त्यांच्या समवेत नजीब भाबे, माननीय श्री रमेश बोरे साहेब आणि अय्यूब बोरे साहेब या सर्व पाहुण्यांचं 9 स्टार ग्रुप आणि एवन ग्रुपच्या माध्यमातून महापोली एवन ट्रॉफी 2020 मध्ये हार्दिक हार्दिक स्वागत। जार्लिस के साहिल आपको टीम के करता धरता तारिक रईस से आकर संपर्क करना है। तर व्यासपीठावर नुकतंच आगमन झालेलं आहे सन्माननीय सुयोग पाटील साहेबांचं, त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत। तसेच तुम्ही पाहत आहात सन्माननीय खालिक मुल्ला साहेब शिवसेना अल्पसंख्याक अध्यक्ष पालघर जिल्हा, त्यांच्या समवेत नजीब भाबे साहेब, सन्माननीय रमेश बोरे साहेब आणि सन्माननीय अय्यूब बोरे साहेब, सर्वांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत। साहेब शिवसेना अल्पसंख्याक अध्यक्ष पालघर जिल्हा, तसेच सन्माननीय नजीब भाबे साहेब, सन्माननीय रमेश बोरे साहेब आणि सन्माननीय अय्यूब बोरे साहेब, आपलं पुन्हा एकदा हृदयाच्या अंतःकरणातून स्वागत स्वागत स्वागत। चलते फिर से खेल की तरफ। 3 ओवर्स का खेल बचा है इस मैच में और काफी रोमांचक 3 ओवर्स ये साबित हो सकते हैं। 18 गेंदे 35 रनों की जरूरत है। नया ओवर लेकर ऋषभ का यह दूसरा ओवर। ड्राइव कर दिया गेंद को हवा में, लाजवाब शॉट फाइक अंसारी के बल्ले से, सुंदर ऑफ ड्राइव, 6 रन। क्या शॉट लगाया अजय गरत। ऐसी स्थिति में, ऐसे मौसम में ऐसे स्ट्रोक्स आसान नहीं होते। तारीफ काबिल स्ट्रोक फाइक के बल्ले से निकलता हुआ, ये देखिए ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, दूर से खेला था, सुंदर स्ट्रोक, सीधा 6 रन। जबरदस्त लॉफ्टेड एक्स्ट्रा कवर ड्राइव देखने को मिला है। वहां पर विट मिला था, उसका फायदा उठाया। जब भी शॉट खेलते हैं फाइक अंसारी तो बड़े ही कड़क शॉट्स लगाते हैं, पूरे दिल से और पूरी ताकत से खेलते हैं। एक होल हार्टेड क्रिकेटर है, जबरदस्त ऑलराउंडर, हरफन मौला खिलाड़ी फाइक अंसारी। टॉस इस बार जमीनी रास्ते से खेला है, एलिवेशन नहीं बना पाए स्ट्रोक में, बल्ले के बीचों बीच नहीं ले पाए थे, जिस वजह से हवाई फायर देखने को नहीं मिला। केवल 1 रन इस बार। स्कोर बढ़ता हुआ पायनियर स्पोर्ट्स का 35 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अब 16 गेंदे 28 रन। पिछली गेंद पर जो शॉट्स लगा था, अब मैच में मजबूत स्थिति थोड़ी सी बनाती हुई पायनियर स्पोर्ट्स। 16 गेंदे 28 रनों की जरूरत। हालांकि पिछली ओवर में सिद्धार्थ ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी, 6 रन खर्च किए थे, एक विकेट भी हासिल किया था। लेकिन इस ओवर की पहली गेंद पर ऋषभ ने छक्का खाया, उसके बाद एक सिंगल। 7 रन अब तक 2 गेंदों में दे चुके हैं। गुलाम हलबे भी हमसे जुड़ते हुए। ऋषभ की अगली गेंद, इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट ड्राइव करने का प्रयास था, तेज तर्रार गेंद। ऋषभ ने ये दिखाया पहले ओवर में भी, बड़ा शॉट लगने के बाद उन्होंने वापसी की थी, एक वाइड यॉर्कर की थी रमीज रईस के विरुद्ध। लेकिन बड़ा शॉट लगने के बाद ही क्यों इतनी अच्छी गेंद करनी चाहिए, उसे पहले भी तो आप कर सकते हो, और उसकी इस समय सख्त जरूरत है साई स्पोर्ट्स खारबाव टीम को। हर गेंद यहाँ पर संभल कर करनी होगी। दोनों भी खतरनाक बल्लेबाज क्रीज पर है, माजिद बोबड़े और फाइक अंसारी। इस बार कमजोर गेंद, फुल टॉस, स्विंग कर दिया ऑन साइड में और पाए गए डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के नजदीक। बढ़िया कैच,
बहुत ही सुंदर कैच, माजिद बोबडे आउट। भंडारी शट पड़ के बिगर वाला बिन दड़ छकड़े वाला, भंडारी शट पड़ के बिगर वाला बिन दड़ छकड़े वाला, भंडारी शट पड़ के बिगर वाला। फुल टॉस गेंद थी, उसे स्वंग कर दिया था, लेकिन बाउंड्री का और जो बल्लेबाज का अंतर है उसे तय नहीं कर पाए। तीसरे अंपायर की मदद मांगी है। जी हाँ, वहाँ पर रेफरल लिया गया है अंपायर द्वारा, मेरे ख्याल से अंपायर देखना चाहते हैं। थर्ड अंपायर की तरफ ये निर्णय सौंपा गया है, क्या फील्डर बाउंड्री के बाहर तो नहीं गए हैं, कहीं पैर उनका बाउंड्री पर तो नहीं है, ये यहाँ पर देखते हुए अब तीसरे अंपायर फुल टॉस गेंद। ये देखिए हर्षद थे वहाँ पर बाउंड्री लाइन के नज़दीक। इस तरह की कैचेस कभी भी आसान नहीं होते जब आप बाउंड्री लाइन के नज़दीक फील्डिंग करते हो। दिमाग में बाउंड्री रखनी पड़ती है और नजरें गेंद पर रखनी पड़ती है, सुरक्षित हाथों की जोड़ी पेश करनी पड़ती है। हालांकि माजिद तीसरे अंपायर की मदद मांगी है। रिप्ले देखने के बाद माजिद समझ गए हैं कि क्या डिसीजन आने वाला है। आउट करार दिया अंपायर ने। तो ये तीसरा झटका पायनियर स्पोर्ट्स को लगा है। माजिद 2 रन बनाकर पवेलियन में, स्कोर 35 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी 28 रनों की आवश्यकता है मैच को जीतने के लिए पायनियर स्पोर्ट्स को। बहुत ही रोमांचक स्थिति में मैच। पायनियर स्पोर्ट्स बनाम साई स्पोर्ट्स खारबाव टीम ने पहले बैटिंग की, 62 रन बनाए, जिसमें 37 रनों का जबरदस्त योगदान हर्षद द्वारा, और हर्षद ने ये कैच लिया है। 14 गेंदें शेष है, जीतने के लिए 28 रनों की जरूरत। मंच पर सम्मानीय सुयोग पाटिल साहब महाराष्ट्र प्रदेश ओबीसी सेल के सेक्रेटरी है, सचिव है, उनका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। और ये गेंद पुल कर दिया है, क्या कमाल का शॉट है, 5 का हवाई फायर, 6 रन। राज्य साहेबांचा तो खास, राजू पाटील आला नावास, राज्य साहेबांचा तो खास, राजू पाटील आला नावास, भूषणच्या गावागावात एकच वाटा राजू दादा। ऐसे लग रहा है अजय गरत के जो रन उन्होंने दिए थे अब वो वसूलने की तैयारी में, अब तक 2 बड़े स्ट्रोक लगा चुके फाइक अंसारी। आज जो बैटिंग ऑर्डर हम देख रहे हैं वो बहुत बढ़िया बैटिंग ऑर्डर नज़र आ रहा है यहाँ पर पायनियर स्पोर्ट्स का। कल कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलतियाँ हुई थी बैटिंग ऑर्डर को लेकर। आज देखिए फाइक अंसारी ऊपर आए हैं बल्लेबाजी के लिए, और अकबर भी 5 नंबर पर आए हैं। माजिद बोबडे 1 डाउन आए थे, हालांकि माजिद ज़्यादा कुछ योगदान नहीं दे पाए। अगली गेंद लेकर ऋषभ, एक और शॉर्ट गेंद इस बार कट कर दिया है, लेकिन बढ़िया फील्डिंग बैकवर्ड पॉइंट की तरफ। केवल 1 रन सिंगल लेकर अपने पास स्ट्राइक रखते हुए चौथे ओवर में फाइक अंसारी। 4 ओवर की समाप्ति, 5वां ओवर शुरू हो जाएगा। अभी भी 2 ओवर्स बचे हैं, स्कोर 42 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। तो स्ट्राइक फाइक अंसारी के पास है, 12 गेंदें शेष, 21 रनों की आवश्यकता है मैच को जीतने के लिए पायनियर स्पोर्ट्स को। मंच पर उपस्थित वडौली के उप सरपंच सम्माननीय जकी सोसे साहब, आपका भी हार्दिक स्वागत। और देखिए मेहमानों से भरा हुआ है ये वीआईपी डायस, मेहमानों का तांता लगा हुआ है यहाँ पर। मापोली A1 ट्रॉफी 2020 में सभी मेहमानों का 9 स्टार ग्रुप और A1 ग्रुप की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत। ये स्टैंड्स दिखाए जा रहे हैं, लेट हाजिम यासू से स्टैंड, और उसके बगल में आप देख सकते हो लेट सिकंदर ठानवल स्टैंड है, और वहाँ पर भी काफ़ी दर्शक है। सभी स्टैंड्स में काफ़ी दर्शक नज़र आते हुए। लेट अब्दुल्ला भूरे स्टैंड आपकी स्क्रीन पर है, दर्शक लुत्फ उठाते हुए स्टैंड में बैठकर खेल का। कोई भी स्टैंड में आप बैठिए, आपको बहुत अच्छा नज़ारा नजर आएगा मैदान का। लेट उमेश गायकवाड स्टैंड, 12 गेंदे और 21 रन ये समीकरण है। लेट कसम शेख स्टैंड भी, वहां पर भी दर्शक काफी संख्या में मौजूद है, खचाखच भरे हुए हैं स्टैंड्स। लेट वकीनाचन स्टैंड, और देखिए दर्शक काफी प्रसन्न। लेट साद हल्बे स्टैंड भी आपको दिखाया जा रहा है। तो खेल की फिर से शुरुआत होने जा रही है। 12 गेंदे 21 रन वक्त हो रहा है कमेंट्री में परिवर्तन का। आपके साथ रहेंगे स्लॉग ओवर्स में सिद्दीक बाबे। धन्यवाद अजय गरत। मैच बहुत ही रोमांचक स्थिति में, और फाइक जिस तरह बल्लेबाजी कर रहे हैं
आज हिटमैन जबरदस्त हिट लगा रहे गेंदबाजी के लिए। सिद्धार्थ उछाल दिया गेंद को, लेकिन गेंद जमीन के सहारे गई है। हालांकि बैकलीफ को ऊंचा नहीं कर पाए थे वहां पर फाइक। 2 रन स्कोर में आते हुए 44 पे पहुंचा है स्कोर। जिस तरह का शॉट खेलना चाहता, कहीं ना कहीं गेंद थोड़ी नीची रह गई थी। लेकिन ये मैच भी बहुत ही कट टू कट चल रहा है, क्योंकि अभी भी मैच में काफ़ी जान है। और अभी भी मैं कह रहा हूं कि 50-50। लेकिन फाइक एक ऐसे बैट्समैन है जो 2 से 3 गेंदों पर मैच को पलट सकते हैं। बढ़िया वापसी, गुड लाइन पे पड़ने के बाद नेचुरल, रॉन्ग वन, बाएं हाथ के गेंदबाज की रॉन्ग वन थी। टिप्पा खाने के बाद अंदर की जानिब आई थी। देखिए सिद्धार्थ राप्टे भी एक ऐसे गेंदबाज हैं, अगर साइंस की हम बात करते हैं तो लगातार उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की है। फाइक की बात करते हैं तो पायनियर के लिए लगातार गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में टॉप पे रहे। सिद्धार्थ राप्टे लेफ्ट आर्म राउंड विकेट जाते हुए, कदमों का इस्तेमाल, निकल के मारा, गेंद कारपेट के सहारे आउटफील्ड में पहुंची, मिसफील्ड हुआ है। 2 रन पूरे किए। तीसरे की तरफ जाना चाहते थे वहां पर बैट्समैन अकबर, मना किया फाइक ने। ये जो 2 बैट्समैन है नबील, ये पायनियर के दोनों बहुत ही पावर हिटर बैट्समैन है। पावर हिटर अकबर और हिटमैन फाइक। 46 पे पहुंचा है स्कोर। हर गुजरती गेंद के साथ मैच का जो क्लाइमेक्स है वो ऊपर जाता हुआ। ये वीआईपी डाइस आज खचाखच भरा हुआ है। यहाँ पर उप सरपंच वडोली, जकी सुसे, तारिक रईस, सुयोग पाटिल। इस मरतबा फिर से बैकलीफ को नीचा रखा, बहुत ही करारा ड्राइव। देखिए बॉलिंग अच्छी हो रही है, बल्लेबाजी अच्छी हो रही है, फील्डिंग अच्छी हो रही है। ये मैच जो सबसे अच्छा करेगा वही जीत जाएगा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 46 पे पहुंचा है। 47 8-16 का इक्वेशन। सिद्धार्थ स्विंग किया ऑन साइड में, खाली क्षेत्र में, और गेंद पहले बाउंस पर स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। 4 रन। ये देखिए डगआउट को दिखाया जा रहा है जहां पर अल्ताफ बाली सर है, और शॉट बहुत अच्छा खेला था, प्लेसमेंट लाजवाब थी। गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रन। इस चौके की मदद से स्कोर पायनियर का 50 के ऊपर पहुंचता हुआ 51 पे पहुंचा है। यहां से 7 गेंदे और 12 रन, एग्जैक्टली 7-12 आ गया है मैच का। देखना इस मैच के 7-12 पर कौन सी टीम अपना नाम लिखाती है। 7 गेंदे 12 रन। लेकिन इस तरह की जो स्थिति रहती है मानो मैच कुल कायदे में रहता है। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट। इस मरतबा क्रीज में पीछे खेल के गेंद को खेल दिया इनफील्ड के ऊपर से। फील्डिंग लाजवाब, लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट भी लाजवाब। अच्छा कॉल। 6 गेंदे और 10 रन। व्हाट अ मैच। पायनियर की एक खासियत है, ये टीम किसी भी टूर्नामेंट में खेले वो टूर्नामेंट वहां से ऊपर चला जाता है। ये डगआउट दिखाया जा रहा है, फराज खानवाल डगआउट, जहाँ पे अल्ताफ बाली सर और पायनियर की पूरी टीम ऊपर नजर आ रही है। 6 गेंदे 10 रन। नबील, इस तरह की जो इक्वेशन रहती है, एक बड़ा स्ट्रोक आया तो दबाव छट जाएगा, लेकिन एक विकेट गिरा तो नए बल्लेबाज को सामना करना होगा। ये इक्वेशन सिमिलर रहती है। ये कमेंट्री बॉक्स अजय गरत खड़े रहकर कुछ सुन रहे हैं किसी के मैसेजेस। मजहर खान ऑफिशियल स्कोरिंग कर रहे हैं और नबील मुस्कुराते हुए। मापोली A1 ट्रॉफी आप देख रहे हैं,
दूधिया रोशनी पूरे मैदान को अपनी बाहों में समेटती हुई, और मैच बहुत ही कट टू कट, कश्मकश, संघर्ष। बहुत सोच विचार मैदान में चल रहा है कि आखिरी ओवर में किसको लाया जाए। देखिए, पायनियर के जो रिकॉर्ड्स हैं नबील, आप हिस्ट्री उठा के देखिए। ये टीम कल भले से थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर जैसी चर्चा चल रही थी, और जैसे कमेंटेटर अजय घरत ने भी कहा, मैंने तो उसी वक्त कहा था कि आपके रेस के घोड़े उनको ऊपर भेजा जाए। ठीक है, वो एक प्लान था, लेकिन चेसिंग का इनका रिकॉर्ड उठा के देखिए। ये टीम तालुका क्रिकेट में चेसिंग के मामले में सबसे अच्छी टीम है। कभी 2.3 ओवर, कभी 2.4 ओवर, कभी 2.2 ओवर, वो भी बड़ी टीमों के सामने, और वो भी बड़े मैच में। ये भी तो नहीं भूलना चाहिए कि पॉइनियर के जो मैचेस रहते हैं, या तो पॉइनियर रोमांचक बनाती है या खुद ब खुद मैच रोमांचक बन जाते हैं। नहीं, बेस्ट टू बेस्ट साइंस स्पोर्ट खारबाव ने इस सीजन में 2 सेमीफाइनल खेले हैं, और एसके स्पोर्ट्स के साथ वो इस वक्त 10वें नंबर पर रैंक कर रही है। हर्षद टीम के कैप्टन आए, सामना करेंगे फाइक। इस मर्तबा गेंद को खेल दिया है बहुत ही खूबसूरती के साथ, इनफील्ड के ऊपर से नहीं रोक पाए। देखने अंपायर का इशारा, 4 रन। यहाँ एक बात कहूंगा कि बहुत कम स्विच हिट खेलते हैं, उनको मालूम है हर्षद लेग ब्रेक गेंदबाज हैं। ये देखिए कमाल का शॉट, यही तो खासियत रहती है बैट्समैन को, बहुत उसके पास शॉट चाहिए और स्थिति को पढ़कर और गेंदबाजी को पढ़कर शॉट खेले। बहुत बढ़िया स्ट्रोक, तारीफ काबिल स्ट्रोक। दबाव अब छटता हुआ विद द स्पिन खेला था। 5 गेंदे 6 रन। एक चौके ने अब दबाव को खत्म कर दिया है। 5 गेंदे 6 रन, 22 रन बनाकर खेल रहे फाइक अंसारी। देखिए, हर्षद पाटिल ने पहले बल्लेबाजी बहुत अच्छी की थी, कुल मिलाकर 37 बनाए थे, 10 बच्चा ने भेजे, पहली पे चौका खा चुके। हर्षद फाइक को बहुत ही करारा ऑन ड्राइव, फील्डर जा रहे लेकिन नहीं रोक पाए, बुलेट शॉट 4 रन। ये फाइक का शॉट है जो मुश्किल से रुकता है। क्या शॉट खेला है, भरपूर ताकत, क्या ऑफ ड्राइव उन्होंने लगाए। ये देखिए बहुत खूबसूरत शॉट, फील्डर थे डीप में, ऊपर से गेंद गई, 4 रन नंदन के। ब्यूटीफुल स्ट्रोक, ताकत पूरी झोंक रहे हैं। और पायनियर ने अभी तक साबित कर दिया है कि चेसिंग में उनका नाम ऊपर क्यों है। हालांकि 4-2 का इक्वेशन है मेरे ख्याल से, 4 गेंदे 2 रन। अब बैट्समैन के पड़ोसी बढ़ गए हैं हर्षद पाटिल, लेकिन मुकाबला बहुत अच्छा किया साइंस ने भी। बल्लेबाजी हर्षद की बहुत अच्छी रही। आज उन्होंने अक्षय को गेंदबाजी नहीं दी। इस मरतबा गेंद को खेल दिया है फिर से, और इसके साथ ही पायनियर ने इस मैच को जीत लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशन अल्ताफ बाली सर एंड पायनियर, एंड हार्ड लक महेंद्र पाटिल, एंड हार्ड लक साइंस खारबाव। कॉन्ग्रेचुलेशन कैप्टन जावेद अल्सो। आइए दोस्तों, मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है द हिटमैन फाइक अंसारी। 30 रन बनाए चेस करते हुए। आइए हमारे बीच में सुयोग, पहले मैन ऑफ द मैच देते ना, उसको जान दो ना मैन ऑफ द मैच। पहले हम मैन ऑफ द मैच देंगे। फाइक आपको आगे आना है मैन ऑफ द मैच के लिए।
आइए, मैन ऑफ द मैच से पहले हम सत्कार करने जा रहे हैं। हमारे बीच बहुत ही खूबसूरत चेहरा, स्पॉन्सर दुनिया का, मैन फ्रॉम तलोली, तारिक रईस साहब है। मैं असगर पटेल से कहूँगा कि तारिक रईस साहब की इज्जत अफजाई करे। तारिक रईस, असगर पटेल से रिक्वेस्ट है कि तारिक रईस साहब की इज्जत अफजाई करें। आइए, मोहम्मद बाबे से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मोहम्मद बाबे से कि तारिक रईस साहब की इज्जत अफजाई करे। उन्हें ये गुलाए पुरखुलू शॉल, गुलाए मोहब्बत और ये यादगार ट्रॉफी। हमारे बीच सुयोग पाटिल हैं, सचिव महाराष्ट्र प्रदेश ओबीसी सेल। मैं नवील बाबे, गुलाम हलवे और फराज टानवाल तीनों से रिक्वेस्ट करता हूं कि उनका सत्कार, सम्मान और स्वागत करें। नवील बाबे, गुलाम हलवे और फराज टानवाल, सचिव महाराष्ट्र प्रदेश ओबीसी सेल। आवाज कोणाचा, आवाज जनतेचा, ताही दिशा तुला। पायनियर, इसके बाद आपको मुकाबला खेलना है महिंद्रा स्पोर्ट्स से। टॉस के लिए 6 ओवर के बाद आपके कैप्टन को तैयार रहना है। आइए, मैन ऑफ द मैच फाइक अंसारी, 30 रन की खूबसूरत बारी खेली। और उप सरपंच वडोली जकी सुसे से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके हाथों से हम A1 ट्रॉफी दे रहे हैं फाइक अंसारी को, उनके A1 खेल के लिए। जकी सुसे, उप सरपंच वडोली। उसके बाद पायनियर, आपको जाना नहीं है, आपका मुकाबला इसके बाद है। इंशा मेडिकल का गिफ्ट बैग हम देने जा रहे हैं। और इसे देने के लिए लाला भुरे के हाथों से हम ये मेडिकल असिस्ट बैग दे रहे हैं। बिस्मा कम्युनिकेशन का जो गिफ्ट हैम्पर है, अजहर घाटे के हाथों से हम देंगे। अजहर घाटे, अजहर घाटे देते हुए आखिर में रिस्ट वॉच है। अकबर मुल्ला साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको रिस्ट वॉच देना है। अकबर मुल्ला, ट्रिपल एस टेलीविजन सेट पे हमारी आवाज नहीं जा रही है। कई कंप्लेंट्स है, ट्रिपल एस कंट्रोल रूम से रिक्वेस्ट है कि हमारी आवाज को पहुंचाए। हमारे बीच इस वक्त तशरीफ लाने जा रहे हैं भिवंडी रत्न और भिवंडी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शुएब खान गुड्डू। हम आपका इस्तकबाल करते हैं मापोली A1 ट्रॉफी में। वेलकम वेलकम वेलकम।
ये आप देख सकते हैं मापोली ट्रॉफी में इस वक्त जुड़ते हुए भिवंडी रत्न और भिवंडी कांग्रेस जिला कमेटी के अध्यक्ष शुएब खान गुड्डू साहब, आपका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल है। मापोली A1 ट्रॉफी में सभी 9 स्टार ग्रुप उनको वेलकम कहने के लिए प्रिंस ऑफ मापोली अदनान भाबे, फराज सानवाल, most welcome the genius personality Bhiwandi Ratna and Bhiwandi Congress Committee